हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इज द परपेंडिकुलर फॉर्म एंड सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ ਆ ਕਿ परपेंडिकुलर फॉर्म ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। सो परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, देखो लेट्स से कोई मेरे को स्ट्रेट लाइन आ, ठीक है। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेप्ट है ए ते 0, दिस इज 0 एंड बी। इसते तुसी कोई परपेंडिकुलर ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਿਆ that is perpendicular ਹੈਗੀ length p and which making the angle alpha with the positive direction of x axis। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ positive direction of x axis ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ alpha, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਆ। then equation ਕੀ ਆ, x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। याद रखना की इक्वेशन हैगी x cos alpha y sin alpha equal to p। this is called perpendicular form of straight line when there is a straight line like this and this is the given perpendicular and which making the angle alpha with the positive direction of x axis। सम देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। find the perpendicular form of equation of line of from a given value p and alpha। p दी वैल्यू तो 3 दी है, alpha 45 पुट कर दें x cos 45 plus y sin 45 is equal to p। p कितना देता है 3, cos alpha कितना होएगा 1 upon cos 45 1 upon root 2, 1 upon root 2 is equals to 3 and you will get answer is x plus y is equals to 3 under root 2 is your answer। सेकंड सम तुसी खुद करोगे, करके मैंने कमेंट बॉक्स च आंसर दसना ओदा, ठीक है जी। सो नेक्स्ट सम देखते हैं ਆਪਾਂ। नेक्स्ट सम तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ सिमेट्रिकल फॉर्म, क्योंकि this was the perpendicular form, now symmetrical form। let's say एक कोई साडे कोल कोई स्ट्रेट लाइन आ, ठीक है, विच पासिस थ्रू पॉइंट है x1 y1, क्लियर। एंड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, इथे लिख लेनी मैं x1 y1, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंगल बना रही थीटा। लेट्स से दिस इज अनदर पॉइंट x एंड y and this distance is given r। then what is the equation? this is y axis and this is x axis। equation are which is passes through given point x1 and y1 making the angle theta with the positive direction of the x axis। then x minus x1 upon cos theta is equals to y minus y1 upon sin theta is equal to r। ये चीजें डायरेक्टली पूछिया जा सकदियां ते ये यूज भी होनी आगे के, क्लियर। x minus x1 upon cos theta y minus y1 upon sin theta equal to r इस केस दे विच आएगा whenever there is a line which passes through given point and theta is the angle with the positive direction of x axis and r is the distance between any two points, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ डिस्टेंस ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ r। देन ये इक्वेशन फॉलो होगी, क्लियर। सो ਅਸੀਂ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट। कह रहा कोई स्ट्रेट लाइन है जी पास कर रही है पॉइंट्स दे विचों, यानी पासिंग पॉइंट्स सानू कितने दिते आ -2 and 3 एंड मेक एंगल 60 डिग्री। एंगल कितना बन रहा 60 डिग्री, ठीक है। इनू मैं x1 मान लेनी है, पॉइंट मेरा की है y1, इसे पुट कर दो बट यू विल गेट x माइनस x1 सॉरी -2 +2 बन जाएगा फिर अपॉन cos 60 इज इक्वल टू y माइनस y1 is 3 अपॉन sin 60, ठीक है जी। सो इथे r ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਲੈਟ ਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋ r ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x + 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60 1 upon 2 is equals to y minus 3 sin 60 under root 3 by 2, 2 na 2 cancel and what will be the answer under root 3x plus 2 is equals to y minus 3। so this will be your equation of straight line, ठीक है जी। ਇਸ ਅਸੀਂ ਸਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਨੈਕਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਥਡ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਿਵਨ ਹੋਣ then what is the formula y minus y1 equal to slope x minus x1। स्लोप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ m, ਤੇ m ਕਿੱਦਾਂ ਸਲੋਪ ਨਿਕਲਦੀ tan
थीटा y minus y1 3 equal to tan theta. थीटा इज 60 डिग्री. tan 60 कितना होंगे अंडर रूट 3 x माइनस x1. देखो सेम चीज बन गई अंडर रूट 3 x प्लस 2 इक्वल टू y माइनस 3. सो एक सामने करेंगे अलग अलग तरीके है, तुम अलग अलग तरीके सामने कर सकते हो. क्लियर आंसर सेम आएगा. कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन. लाइन इज 4x माइनस y इक्वल टू 0 फ्रॉम अ पॉइंट. गिवन पॉइंट है, किसी पॉइंट तो इस लाइन का डिस्टेंस पता करना. पॉइंट की है 4 1. मेजर अलोंग द लाइन मेकिंग एंगल 135 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ध्यान दियो, मैं इतने डायग्राम ड्रॉ कर दी तुहानू ज्यादा क्लियर होएगा कि कोई लाइन है. लाइन गिवन हैगी 4x माइनस वाई इक्वल टू 0. आई कैन राइट इट y इज इक्वल टू 4x. इक्वल गल है, मैं y दूसरी साइड लगी, y इज इक्वल टू बन गया 4x. क्लियर. सो सिंपल इंटरसेप्ट नहीं है, y तो x की फॉर्म च दी हुई है. दैट मीन्स दिस इज योर y इज इक्वल टू 4x लाइन. इस लाइन का मैं डिस्टेंस पता करना एक पॉइंट तो ਜਿਹੜੇ मेजर किए गए अलोंग द लाइन मेकिंग एंगल 135 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. मतलब कोई लाइन आ, ठीक है जी, ਜਿਹੜੀ 135 ਦਾ एंगल बनाती विद द पॉजिटिव ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ डिस्टेंस मेजर ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ठीक है, उस लाइन ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ डिस्टेंस पता करना इस लाइन ਦਾ. क्लियर. थोड़ी क्वेश्चन ਨੂੰ समझਣ ਦੀ करो कोशिश. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ इस लाइन ਦਾ डिस्टेंस पता करना इस पॉइंट ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ along a line which making angle 135 with the positive direction of x axis. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੀਗਾ ਨਾ. ਸੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚ ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ. then what was the equation? x point is not a 1 4, it is 4 1. x माइनस x1 अपॉन की ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू की सी r. लेट ए डिस्टेंस में हुन r ले लिया, बाद में r पता कर लांगी. क्लियर. इस पॉइंट नु पता करने पहले इन्ना समझने की कोशिश करो. x माइनस 4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 135. देखो cos 135 इट कैन बी cos 90 प्लस 45 एंड इट इज इक्वल टू माइनस साइन 45. ये कर लेंगे हो ना, 90 प्लस थीटा अगे जाएगा, देन की बन जाएगा साडे को माइनस का साइन, क्योंकि अगले क्वाड्रेंट से चले गया ना उत्थे नेगेटिव हो जाना. सो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2. सिमिलरली जो तुम इनू करोगे साइन 135 करोगे यू विल गेट cos 45 एंड अगेन 1 अपॉन अंडर रूट 2. बट साइन च अपने 90 च कुछ ऐड कर दिया, सैकेंड क्वाड्रेंट तो साइन का ही होंदा ना, उत्थे तो पॉजिटिव रहना है. इक्वल टू की हैगा साडे कोल r. तुसी इहनू सॉल्व कर लो. माइनस ਇਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, माइनस ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦੋ, यू विल गेट 4 माइनस x, क्योंकि माइनस जो ऊपर ला देंगे प्लस का बन जाएगा ये माइनस का. दिस इज इक्वल टू r एंड y माइनस 1 इक्वल टू r. ये तो साडे को x का पॉइंट की आ जाएगा 4 माइनस r, ते इथों y का पॉइंट की आ जाएगा r प्लस 1. सो दो पॉइंट आ गए साडे को x ते y. x कितना आ गया साडे को 4 माइनस r, इथों 4 माइनस r एंड y की आ गया r प्लस 1. हुन समझियो ये मेरे को आ गया x ते y पॉइंट. मैं पता की करना डिस्टेंस इन्हां दोनों पॉइंट के विचकार नहीं करना, डिस्टेंस पता करो लाइन दा इस पॉइंट तो. हुन जे मैनू ये पॉइंट पता लग जाए तो मैं इन्हां दोनों विचला डिस्टेंस कढ सकदी हां ना. मैं फर्स्ट पार्ट दे विच तुहानू डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस कढना तो सिखाया होया, इसलिए चीज़ा पहला कराइया सी क्योंकि अगे जाके यूज होंदियां स्ट्रेट लाइन. डिस्टेंस फार्मूले नाल आपां डिस्टेंस कढ सकदे जो तुहानू पॉइंट्स पता लग जान, है ना, कर सकदे हां. सो तुसी ध्यान नाल जे इस चीज नू ऑब्जर्व करो तो देखो कि आ वाला जेड़ा आ वाला पॉइंट पता लग जाए तो मैनू डिस्टेंस पता चल जाएगा ना. ए पॉइंट सीगे साडे कोल x1 y1, मैं इत्थे x y पॉइंट चाहिए मैनू, बट जदों भी ए वाले पॉइंट इत्थे लाई करनगे तो इस इक्वेशन भी करनगे सैटिस्फाई. लाइन उत्ते जेडे भी पॉइंट हुंदे आ उस इक्वेशन नू सैटिस्फाई करदे आ ना. देखो कोई भी लाइन उत्ते जे कोई पॉइंट आ दैट मीन्स वो पॉइंट उस इक्वेशन नू सैटिस्फाई करेगा, मतलब उच पुट करन दी इक्वल टू आंसर आणगे. ठीक है, दैट मीन्स जे ए एक्स ते वाई पॉइंट असीं इत्ते लाई करा दिए, ठीक है, सानू मिल जाएगी चीज किन्ने डिस्टेंस ते मिलेगी पता लग गया. एक्स ते वाई नू मैं इत्ते लाई करा दिन्नी आ. उत्थे लिख लिया y इज इक्वल्स टू 4x इंप्लाइज टू y दी वैल्यू साडे को कितनी है r प्लस 1 इक्वल टू 4x. x कितना है 4 माइनस r. इन्ना क्लियर है. सो इत्थों साडे कोल
r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r प्लस 1 इक्वल टू 16 माइनस 4r एंड दिस इज 5r इक्वल टू 15 एंड इंप्लाइज टू r इज इक्वल टू 3। यानी कि जो r की वैल्यू r3 लिए पॉइंट्स इत्थे लाई कर देंगे, ਅਸੀਂ r ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ कर देंगे 3, 4 माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। तो साडे कोल की आ जाएगा 4 माइनस 3 1 एंड 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। सो ये पॉइंट्स की आ गए 1 एंड 4। क्लियर, दैट मीन्स ये पॉइंट मैंने पता लगे क्योंकि मैं सैटिस्फाई करके तो r की वैल्यू कर ली है। क्लियर, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ रही है इस चीज की, ठीक है जी। r इज इक्वल टू साडे कोल की आ गया 3, और मैं वैल्यू इत्थे पुट करती, जेडे पॉइंट्स लाई कराए सी मैं तो एग्जैक्ट पॉइंट मिल गए 1 एंड 4। हुण मैं पता की करना ना, दोनों विचकाला डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके तुहाडे को आराम ना आ जाएगा। लेट असी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट्स दिते हुण साडे को 1 4 एंड सॉरी पी क्यों पता करना, 4 1 एंड 1 4, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। व्हाट यू विल गेट, 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, व्हाट यू विल गेट माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड you will get 9 plus 9 and under root 18, that is 3 under root 2। This is your answer। So ये पता चल गया थानू कि असी किद्दां ये वाला सम कर लिया, ठीक है। सो किते ना किते सिमेट्रिकल फॉर्म यूज हो गई कि एक पॉइंट गिवन पॉइंट दिता हैगा ते एंगल दिता होया, उत्थों पहला असी पॉइंट्स लोकेट कर ले, उन्हां पॉइंट्स नूं इत्थे सैटिस्फाई करा के उत्थों असी ए वाले पॉइंट इस इक्वेशन ते सैटिस्फाई कराए सीगे ना, ए वाले पॉइंट कि एक्स वाई इत्थे कदों होणगे, जदों इस इक्वेशन नूं सैटिस्फाई करनगे। ए वाले पॉइंट जेडे एक्स ते वाई दी वैल्यू आई मैं इत्थे लाई करा दित्ती, तो सैटिस्फाई करके मैं देख लिया किन्ने पॉइंट एक्चुअली आए आ, ते फिर उन्हां च डिस्टेंस फार्मूला ला के इस लाइन दा इत्थों पॉइंट तो की पता कर लिया, डिस्टेंस पता कर लिया। Let us see the next sum. Next sum is point HK divide a line segment in a ratio 1 इत्थे कर लो 2:1, find equation of straight line। कि पॉइंट हैगे H एंड K जेडे डिवाइड करदे एक लाइन सेगमेंट नूं, रेशियो हैगी 2:1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो लेट्स से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज द लाइन सेगमेंट। क्लियर, ये मैं लाइन सेगमेंट ले लिया A0 एंड 0B। जेडे पॉइंट H ते K हैगे ने, लेट्स से दिस इज द पॉइंट HK, इस लाइन सेगमेंट नूं किन्नी रेशो च डिवाइड कर रहे ने, 2:1 दे विच। पॉइंट्स की हैगे ने H ते K। जे तुसी प्रीवियस वीडियोस पार्ट 2 देखिया होया, तानू अपने आप याद आ जाएगा इस सम च की करना। क्लियर, ये मिक्स आ पार्ट 2 ते अगे भी जेडे किते इंटरसेप्ट फॉर्म। बट ध्यान ना देखो, एक सेगमेंट डिवाइड कर रहे किसी रेशो च, याद आया सेक्शन फॉर्मूला सी पार्ट 2 च कीता ही, क्योंकि वो जेडे हैगे आ ताही मैं तानू पहला चीजां करवाइयां, क्योंकि वो अगे स्ट्रेट लाइन च यूज हुंदियां, दिस आर द पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ताही अगे चीजां हो पाणगियां। क्लियर, सो जिन्हां ने वो वीडियो नहीं देखी पहला जरूर देख लियो ताकि चीज तानू समझ आ जाए, करवाई हुई मैं ऑलरेडी। इस लाइन सेगमेंट नू ए जेडे पॉइंट एच के या 2:1 च डिवाइड कर रहे ने। हुण ध्यान नाल सुनो कि जे सानू इंटरसेप्ट गिवन हैगे ने ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੋਣੀ, x upon a plus y upon b is equals to 1। ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ a ਤੇ b ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮੰਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਲੈਟਸ ਸੇ mn, this is your point x1 y1 and this is point x2 y2। ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, mx2 यानी a प्लस यानी 2a, mx2 प्लस nx1 0 अपॉन m प्लस n दैट इज 3। ये पहला पॉइंट निकल गया। दूसरा पॉइंट कर लो के, वो की हुंदा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। एक ਤੁਹਾਡਾ दूसरा पॉइंट है दैट इज k। इत्थों साडे को a ਦੀ वैल्यू कितनी आ गई 3h/2, इत्थों b ਦੀ वैल्यू कितनी आ गई 3k। साडी यानी कि मेरा पॉइंट जेडे साडा पॉइंट ए आ, ए कितना आ जाएगा 3h/2, 0 एंड बी पॉइंट इस दे अकॉर्डिंग की आ गया 0, b आ गया 3k।
के ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ a b ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਕੀ ਔਖਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x upon a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 3h upon 2, ਇਹ 2 ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ x ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਪਲਸ y upon b 3k। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, LCM ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3hk, ठीक है 3h ना कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2xk प्लस 3k कैंसिल हो जाएगा, h रह जाएगा दैट इज hy इज इक्वल्स टू 1। सो आंसर विल बी 2xk प्लस hy माइनस 3hk इज इक्वल टू 0। ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇਤਨਾ ਸਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਚਾਨਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ hk ਡਿਵਾਈਡ ਅ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 2:1 ਕਿ ਬਸ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ 2:1 ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਆ, ਸਟਾ ਕਰੇਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੈਗਮੈਂਟ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ A ਤੇ B ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੇ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ these are the sum की ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਸਮ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।